हेलो एवरीवन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल स्टडी वॉरियर। तो आज के सेशन में हम आपका नया चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 9 ऑफ क्लास 6 साइंस। आई होप यू कंप्लीटेड योर अप टू योर चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट्स। ओके, सो वी स्टार्ट आवर चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग. So in this chapter you study about the organisms and their surrounding. So there are different type of surrounding and different types of air in our country. हर जगह पे अलग तरीके का सराउंडिंग है और हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज है, हर एक का सराउंडिंग क्या है, अलग. अब हमारे पास डेजर्ट्स और माउंटेन्स क्या है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कोल्ड प्लेसेस होती हैं. कोल्ड प्लेसेस होती हैं तो उनमें जो एनिमल्स होते हैं आपके पास, जैसे माउंटेन कोल्ड प्लेसेस, तो वहाँ पे कौन कौन से पेड़ होते हैं आपके, ओक होता है, पाइन ट्री होती है, और एक डिओडर्स होती है. डिओडर्स वो ट्री है जो सिर्फ प्लेन्स पे ग्रो करती है. और डेजर्ट में आपका कैक्टस प्लांट होता है, और एनिमल कौन सा होता है, कैमल. सो different type of animals can survive in different surrounding. Okay, so here you see there are many living organisms, and you see living organisms around anywhere. It's your home, it is your desert, mountain. In home you see your lizard, apne chipkali, your ant. So different type of living organisms found in everywhere. So living organisms are around us. We are in this earth, we are surrounding by living organisms. Living organisms are in our surrounding and around us. Okay, so let's start our chapter, living things and their surrounding. So living things क्या हैं? Living things वो हैं organism ऐसे जिनको फूड, वाटर और एयर चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए. लिविंग थिंग्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच नीड फूड, वाटर and air for their survival. They are called living organism. For example, plants and animals both are your living organisms. And those which do not need water, food and air, that are your non-living organisms, that are chair, table, that are your non-living organisms. Plants and animals, you having living organisms which you can say that which can breathe, that call also a living organism. So the study of living organism like plants and animal is called your biology. I hope you understand living organism क्या है. जो ऑर्गेनिज्म सांस लेते हैं और जिनको खाना, पानी और हवा चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, तो उसे क्या कहते हैं, विदाउट इन सब चीज़ों के लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकते. ठीक है. नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जो इन सब के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, दैट आर योर लिविंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड द स्टडी ऑफ योर this living organism, that your plants and animal, that is called your biology. Okay, so we start your topic next, that is your characteristics of living organism. For the survival, the first characteristics of living organism is food. The first characteristics is food. So food क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी सर्वाइवल के लिए क्या फूड चाहिए. They need the food for their survival. Plants जो होते हैं, plants आपके make their food by themselves. अपना फूड वो खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से. ठीक है. लिविंग थिंग्स में जो प्लांट्स हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं. कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से. पर एनिमल जो है डिपेंड करते हैं फूड के लिए प्लांट्स पे. डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, किसके लिए, फूड के लिए. फॉर फूड दे डिपेंड अपॉन प्लांट्स.
ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स को तो फूड की नीड ही नहीं होती. जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं दे डू नॉट नीड फूड, do not need food. Example, your rock. I hope you understand what the characteristics of food. First is your food. Living things needs food. Like plant make their food by themselves by the process of photosynthesis in the presence of your sunlight and chlorophyll. And animals depend on the plants for a food. Okay, so this is the first characteristics of your living organism. Now move to your second characteristics, that is your growth. Okay, living organisms का second characteristics आता है आपका growth. So how they grow. Second में आपको क्या आता है, growth. सो ग्रोथ की बात करते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन बींग्स एंड योर एनिमल्स आर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ग्रोथ कैसे होती है, टाइम के विद द पैसेज ऑफ टाइम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हैं स्टूडेंट्स, पहले बच्चा बेबी होता है, यंग वंस मतलब बहुत छोटा होता है, टाइम के साथ वो क्या हो जाता है, बिगर इन साइज, बढ़ जाता है, टॉल बन जाता है और उसमें क्या डेवलपमेंट हो जाता है. तो वो ग्रोथ क्या है, आपका जो बिगर इन साइज हो जाता है, बच्चा टाइम के साथ आपका बढ़ जाता है, वो क्या है, आपका ग्रोथ है. ऐसे ही एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स में भी टाइम के साथ विद द पैसेज ऑफ टाइम दे इंक्रीज इन देयर साइज और बिगर इन साइज, दैट इज कॉल्ड योर ग्रोथ. ओके, जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर होती है और एनिमल्स के अंदर होती है. स्टेजेस के हिसाब से होता है, पहले बच्चे क्या होते हैं, बहुत ही छोटे इनफेंसी पीरियड में होते हैं, देन दे मूव टू अर्ली चाइल्डहुड, देन लेट चाइल्डहुड, then your move to your adolescence and then become adult. So ये पूरी एक लाइफ साइकिल होती है ग्रोथ की. ऐसे ही सेम एनिमल्स का होता है, पहले बहुत छोटे होते हैं, फिर थोड़े बड़े, फिर उससे बड़े, फिर बिगर साइज में हो जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द ग्रोथ. सो इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपकी ग्रोथ होती है. अब हम बात करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आपका एग्जांपल है रॉक. रॉक में क्या होता है, वो ग्रो नहीं करता पर बढ़ जाता है साइज में. तो आपके पास क्या होता है कि हमारे पास प्लेट्स होती हैं, टेक्टिकल्स प्लेट्स बोलते हैं. जब वो आपस में जुड़ जाती है तो आपके जो माउंटेन्स और ये सब माउंटेन्स होते हैं, रॉक्स, इनके जो साइज है वो बिगर हो जाता है. तो इन डिटेल यू स्टडी इन योर हायर क्लासेस अबाउट हाउ दिस टेक प्लेस इन रॉक्स. ओके, सो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, ग्रो नहीं करते पर बिगर इन साइज होते हैं. ओके, रॉक. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ योर ग्रोथ. सेम ऐसी प्लांट में क्या होता है, प्लांट भी ग्रो कर जाता है, ट्री बन जाता है, ऐसे ही हमारे प्लांट के अंदर होता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ मूव टू योर थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज मूवमेंट. मूवमेंट तो आपने अपने 8th चैप्टर में पढ़ा था. मूवमेंट्स कैसे होता है, मूवमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ऑर्गेनिजम्स के अंदर. ठीक है, मूवमेंट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. मूवमेंट में एनिमल्स जो मूव करते हैं, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू, कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. कैसे करते हैं, अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प की वजह से. ठीक है, अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से एनिमल्स क्या है, मूव करते हैं फूड के सर्च में. और क्या बोलते हैं, कोई आपका क्या है, फूड के सर्च में करते हैं, कोई उनको प्रोटेक्शन और अपने एनिमी से बचने के लिए. ठीक है, और कोई भी जैसे फ्लड वगैरह आता है उनसे बचने के लिए एनिमल्स जो है मूव करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस विद द हेल्प ऑफ देयर बॉडी पार्ट्स. ओके, तो मूवमेंट एनिमल्स का ऐसे होता है. और प्लांट्स में कोई मूवमेंट नहीं होता. प्लांट्स जो होते हैं आपके फिक्स होते हैं सॉइल में, तो वो सिर्फ अपने प्लांट्स अपने पार्ट्स को मूव करते हैं, लीव्स और ब्रांचेस को सिर्फ, और रूट्स और शूट्स को. ये फिक्स होते हैं, तो इसमें क्या है, कोई मूवमेंट नहीं होता. ओनली दे कैन मूव ओनली देयर पार्ट्स लाइक शूट एंड लीव्स एंड योर टूवर्ड्स द लाइट. जैसे सनलाइट पड़ती है तो आप ना पार्ट को मूव करते हैं कि जिससे आपका प्रोसेस क्या है, अकर हो जाए फोटोसिंथेसिस का. आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मूवमेंट.
लाइक जैसे आपका एनिमल्स का हो गया, फ्रॉग क्या है, कैसे मूव करता है, आपका जंप करता है पॉन्ड में, देन मूवमेंट होता है। फिश कैसे मूव करती है, वाटर में आपकी स्विम करती है, वाटर के अंदर जाती है, देन मूवमेंट अकर होता है, ठीक है। और हम कैसे मूव करते हैं, जैसे हम वॉक कर रहे हैं तो हमारा क्या मूवमेंट होता है। सो इस तरीके से आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव करते हैं। और प्लांट का मैंने आपको बताया मूव ओनली पार्ट्स को मूव करते हैं, वो एनिमल्स की तरह मूव नहीं हो सकते। जैसे हमारे पास क्या है, लीव्स और फ्लावर जो होते हैं टूवर्ड्स सन के बैंड हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से मूवमेंट हो जाता है, ठीक है। पर नॉन लिविंग थिंग्स आपके मूव नहीं करते, दे डू नॉट मूव, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स आपके मूव नहीं करते अपने आप। अगर आपके पास क्या है, हमारे कोई हम इंटरनल फोर्स लगाते हैं तब मूवमेंट होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। और अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनके अंदर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, लाइक हम अगर किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, चेयर को, या तब हमारा क्या है, कोई मूवमेंट होगा नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, अदरवाइज नहीं होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द मूवमेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। योर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज रिस्पॉन्स टू योर स्टिमुली। सो हेयर द स्टिमुली इज जो भी चेंजेस हो रहे हैं आपके सराउंडिंग में, जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपके रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। जो भी चेंज हो रहा है सराउंडिंग में और आपका जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में वहाँ पे आके रिस्पॉन्स करे, उसको बोलते हैं हम स्टिमुली, ओके। तो स्टिमुली फॉर एग्जाम्पल आप क्या बोलते हैं, किसी भी हॉट चीज़ को बहुत टच करते हैं तो वहाँ पे आप तुरंत से अपना हाथ को पीछे की तरफ ले लेते हैं, ठीक है। तो जो आप टच कर रहे हैं किसी भी हॉट चीज़ को, तो जो वो हीट रिलीज हो रही है वहाँ पे, वो जो चेंज फैक्टर है, वो जो आपका कॉजिंग फैक्टर बोल सकते हैं हीट, वो आपका स्टिमुली है। और जो आपने रिस्पॉन्स किया कि अपना हाथ तुरंत से हटा लिया, वो आपका रिस्पॉन्स है। सो आप यू अंडरस्टैंड द रिस्पॉन्स टू स्टिमुली मीन्स व्हाट, जो हम एक रिस्पॉन्स कोई एक्शन वगैरह करें, दैट इज योर रिस्पॉन्स। और स्टिमुली कोई फैक्टर आपका जिसकी वजह से वो चीज़ हो रही है, जैसे हीट की वजह से आपका पूरा पानी बॉईल, हीट की वजह से आपने वो पीछे किया वो रिस्पॉन्स अपना हाथ, तो दैट इज योर अनदर फैक्टर। लाइक फॉर अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल, सपोज कोई भी डार्क रूम है, ठीक है। डार्क रूम के आप चाहते तुरंत से लाइट आपकी आईज में, जैसे आपने लाइट ऑन कर दी, ब्राइट लाइट शाइन, तो तुरंत आपकी आंख जो होती है बंद हो जाती है। तो वहाँ पे फैक्टर क्या हो गया, जो फैक्टर है स्टिमुली, वो हो गई आपकी लाइट। और आपने जो अपनी आंखें बंद कर ली, शटिंग योर आईज, दैट इज द फैक्टर ऑफ योर स्टिमुली, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली इज व्हाट। अगर हम किसी प्लांट को टच करते, एक प्लांट होता है जिसको टच करके उसकी लीव्स बंद हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जो फैक्टर है टच करने वाला, हमने फिंगर से टच किया, कौन सा प्लांट होता है, मिमोसा। मिमोसा प्लांट होता है जो अपने उनको लीव्स को बंद कर लेता है जब उनको फिंगर से टच करते हैं। तो टच वहाँ पे क्या हो गया, टच कौन सा फैक्टर हो गया, आपका स्टिमुली फैक्टर हो गया। और रिस्पॉन्स क्या, लीव्स ने अपने आप को बंद कर लिया, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड रिस्पॉन्स टू stimuli, what are the examples you understand, okay। Now move to your next characteristics, that is your respiration, okay। So respiration is your next characteristics of living organism। हम all need to grow food, हमें ग्रोथ, अपनी ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड फूड। और फूड, हम जो फूड खाते हैं उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी। ऑल नीड टू ग्रो, हमें एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए और जीने के लिए, यस और नो। हर लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए ग्रो करने के लिए और जीने के लिए, यस और नो। तो रेस्पिरेशन क्या है आपका, ऐसा प्रोसेस है, रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे ऑर्गेनिज्म आपका क्या है, केमिकल प्रोसेस बोल सकते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या है, जो खाना खाते हैं उसके बाद जो उनकी एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या है, ऐसा केमिकल प्रोसेस है जिसमें इट इज अ केमिकल प्रोसेस in which an organism
combine with oxygen to form your, it is the chemical process in which, जिसके अंदर the food taken by the organism and combined with oxygen to release energy. ये एक ऐसा केमिकल प्रोसेस है जब हम जो खाना खा रहे हैं और वो कंबाइन करता है ऑक्सीजन से और आपको क्या प्रोवाइड करता है, प्रोड्यूस करता है एनर्जी। ठीक है, तो एनर्जी जो प्रोड्यूस की जाती है वो ऑर्गेनिज्म से, जो भी आपके अंदर जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं उनको काम करने के लिए हेल्प आती है। ठीक है, तो इसके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या है, प्रोडक्ट्स होते हैं। अदर प्रोडक्ट है प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन के। और इसमें क्या है, रेस्पिरेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फूड से। ठीक है, और ये हमारा क्या है, प्लांट्स के अंदर भी होता है और ह्यूमन बींग्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। अगर हम बात करें, आप जैसे ब्रीथिंग लेते हैं, जो प्रोसेस है ब्रीथिंग का, अपनी नोज और फिर एक्सेल करते हैं, उसको क्या कहते हैं, द प्रोसेस थ्रू विच वी टेकिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है। अब जैसे हम ब्रीथिंग, सांस ले रहे हैं, ठीक है, द प्रोसेस बाय विच वी टेकिंग ब्रीथिंग थ्रू आवर नोज, the process by which एयर जो हमारे लंग्स तक जाती है थ्रू नोज, देन वी एक्सपेल इट, दैट इज कॉल्ड योर ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में क्या है, आपका इनहेल करते हैं हम और क्या करते हैं, एक्सहेल। ठीक है, जहां पे जो एयर है लंग्स तक जा रही है आपकी, और आप क्या कर रहे हैं, नोज के फिर देन उसको बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, आपका ब्रीथिंग। इनहेल और एक्सहेल की तरह लेते हैं। जब हम ब्रीथ करते हैं, जब हमारी एयर मूव करती है इनसाइड से आउटसाइड हमारी बॉडी, तो वो आपका इनहेल क्या होता है, जब आपकी एयर जो मूव कर रही है बाहर से अंदर, वो क्या है, आपकी इनहेल, अंदर की तरफ जा रही है। और जो इनसाइड से अंदर से बाहर जा रही है, दैट इज योर एक्सहेल। जो एयर मूव कर रही है आपकी कहां से, फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, जो आप कहां से ले रहे हो, बाहर से अंदर अपनी बॉडी के, और जो आप अंदर से बाहर की तरफ, वो क्या होता है आपका इनहेल और ये एक्सहेल। ओके, ये ऐसे इस तरीके से आप ब्रीथ करते हैं। और रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ऑक्सीजन किसके हेल्प आती है, रिलीज एनर्जी करने के लिए। आई होप यू अंडरस्टैंड अप टू दिस व्हाट इज रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। जब आप एक्सपेल करते हैं तब आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है, और ऑक्सीजन कहाँ, जब आप रेस्पिरेशन का प्रोसेस, जब खाना खाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन से कंबाइंड होके आपका क्या रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है, अर्थवॉर्म, ये सब में जो अर्थवॉर्म होता है, ये सब कहाँ से सांस लेते हैं, अपने स्किन की वजह से। इनकी स्किन को इस तरीके से
वो किया जाता है कि ये अच्छे से मूवमेंट जब करते हैं तो इजीली सांस लेते हैं अपनी स्किन से। फिशेस जो होती है अपने गिल से सांस लेती हैं। तो सबके लिए क्या है, जैसे हमारे लंग्स हैं ऐसे ही सबके लिए एक ऐसा ऑर्गन बनाया हुआ है जिससे वो इजीली सांस ले। जैसे लंग्स की फिश में क्या होता है, लंग्स की जगह क्या होते हैं, आपके गिल्स होते हैं। ओके, नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर एक्सक्रीशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स योर एक्सक्रीशन। हम एक्सक्रीशन की बात करते हैं। तो एक्सक्रीशन क्या है, हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फूड चाहिए। ठीक है, तो आपने पढ़ा था प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या होती है, वेस्ट मटेरियल होती है। ठीक है, और जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है पूरा जो फूड खाते हैं वो कंप्लीटली आपका डाइजेस्ट नहीं होता, उसमें से कुछ वेस्ट मटेरियल बच जाता है। तो जो रिमूवल होता है वेस्ट मटेरियल का उसे कहते हैं रिमूविंग ऑफ वेस्ट मटेरियल, दैट इज कॉल्ड योर एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, जैसे काउ जो होती है वो यूरिन जो है वेस्ट मटेरियल आपके किसके थ्रू निकालती है, यूरिन और काउ डंग के थ्रू। ठीक है, जो भी आपका वो खाती है खाना, यूरिया ये सब जो भी चीज़ें होती हैं तो वो किसके थ्रू निकलता है, यूरिन के थ्रू निकलता है। ठीक है, और जैसे हम अपनी बात करते हैं तो हमारा जो रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल है उसको हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आपका एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, द रिमूविंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, द removing of waste substance, the removing of waste substance from the body of living organism। जो रिमूविंग है वेस्ट सब्सटेंस का लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से, उसे क्या कहते हैं हम, एक्सक्रीशन प्रोसेस। ठीक है, ऑल लिविंग थिंग्स जो है उनके अंदर क्या बोलते हैं, वेस्ट होता ही है। हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस्ड होता ही है। ठीक है, अगर ये जो वेस्ट मटेरियल है इसका रिमूव नहीं होगा, जैसे हमने आपके सेकेंड चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड में पढ़ा था, इसका रिमूवल नहीं होगा तो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट हो जाएगा आपकी बॉडी में, और ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक हो जाएगा इफ़ योर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल इज नॉट टेक प्लेस। ओके, सो ऐसी हम आपके अकाउंट जो मैंने बताया था, एनिमल्स में भी ये चीज़ होती है और ह्यूमन बींग्स में भी होती है। जो वेस्ट मटेरियल है उसका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्लांट्स में भी ये चीज़ होती है। जैसे आपने देखा होगा कोई प्लांट्स क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग होती है ये चीज़। सीजन में क्या होता है, उनकी जो लीव्स है झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो गेट रीड ऑफ योर वेस्ट मटेरियल, वहाँ से रिमूवल हो रहा है वेस्ट मटेरियल का। ठीक है, अब जैसे हमारे पास क्या है, गम वगैरह हमें किसी प्लांट से मिलती है, तो ये गम, ये जो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं प्लांट्स, वो भी क्या, उनका वेस्ट मटेरियल है। ठीक है, जिसको हम ह्यूमन बींग्स यूज़ करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर एक्सक्रीशन प्रोसेस। पर नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, नहीं करते एक्सक्रीट। ओके, now move to your next characteristics, that is your reproduction। रिप्रोडक्शन आपका प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन बींग्स में भी होता है। रिप्रोडक्शन में क्या है, रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव बर्थ टू अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड। रिप्रोडक्शन ऐसा प्रोसेस है जहां पे गिव बर्थ टू न्यू इंडिविजुअल, जहां पे न्यू इंडिविजुअल ऑफ सेम काइंड। ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर क्या है, आप बोल सकते हैं प्रोड्यूस ए न्यू मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड योर न्यू इंडिविजुअल ऑफ योर सेम स्पीशीज। लाइक ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा, पेरेंट्स की बात कर लेते हैं,
तो मदर और फादर के करेक्टरिस्टिक से क्या होगा, बच्चा पैदा होगा, न्यू। तो वो उनके जो भी करेक्टरिस्टिक्स होंगे या फादर से मैच करेंगे या मदर से। तो रिप्रोडक्शन क्या है ह्यूमंस के अंदर कैसे होता है, to giving a newborn baby, that is your reproduction in your human beings। अब एनिमल्स की बात करते हैं, तो एनिमल्स में क्या होता है कि वो भी क्या है, न्यू स्पीशीज को देंगे और उसके करेक्टरिस्टिक्स किससे मैच खाएंगे, सेम एनिमल्स से ही मैच खाएंगे, ठीक है। तो दैट इज रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। और क्या होता है रिप्रोडक्शन ह्यूमंस में, तो क्या हुआ, न्यूबॉर्न बेबी होता है। बट हमारे किसी किसी में क्या हो, जैसे आपके एग्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, रिप्रोडक्शन बाय एग्स भी होता है किसी किसी, जैसे हम हैन की बात कर ले तो वहाँ पे क्या है, एग के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। और प्लांट्स में क्या होता है, जो सीड्स होती हैं वो न्यू प्लांट में ग्रो जाती हैं, तो ये भी क्या है, एक रिप्रोडक्शन होता है। और वो सीड्स के सारे करेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, अपने प्लांट के जैसे होते हैं, सेम काइंड के। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट योर रिप्रोडक्शन। नाउ मूव टू योर आपका जो रिप्रोडक्शन है वो कटिंग से भी हो जाता है। जैसे हम रोज को कट करके उसके पार्ट को किसी को कट करके दूसरी जगह पे लगाते हैं, वहां पे क्या होता है, रोज ग्रो हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब नॉन लिविंग थिंग्स में क्या है, रिप्रोडक्शन नहीं होता, ठीक है, कोई भी यंग वंस प्रोड्यूस नहीं होता। नाउ मूव टू योर नेक्स्ट, दैट इज योर लिविंग थिंग्स हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। लिविंग थिंग्स के पास क्या है, डेफिनेट लाइफ स्पैन है। क्या होता है, हमारे पास हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो लाइफ है एक डेफिनेट है उसका स्पैन। जैसे हम बात करते हैं बात करते हैं ट्रीज की, प्लांट्स के अंदर में क्या है, उनकी लाइफ स्पैन तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सीजन तक है। बट ह्यूमन बींग्स की क्या एक डेफिनेट है, 60 to 70 ईयर्स है एवरेज लाइफ स्पैन होती है हर एक ह्यूमन बींग्स की। तो एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है किसका, लिविंग थिंग्स का। बट अगर हम बात करें कुछ एनिमल्स में, तो आपका आता है टोटोटॉइस। टोटोटॉइस का क्या है, मोर देन 100 ईयर्स का लाइफ स्पैन है, तो उसका जो लाइफ स्पैन है बहुत ज़्यादा है। ऐसा ह्यूमंस के अंदर नहीं होता है। तो अर्थवॉर्म का लाइफ स्पैन क्या है, मोर देन योर 100 ईयर्स। बट जो ह्यूमन बींग्स का लाइफ स्पैन है कि वो किस टाइम तक जी सकते हैं, जो टाइम पीरियड है जिस टाइम तक कोई भी सर्वाइव कर सकता है, वो आपका क्या होता है, लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। कोई ऐसा टाइम पीरियड, जैसे हमारा एवरेज टाइम पीरियड ह्यूमन बींग्स का क्या है, 60 से 70 ईयर्स है, ठीक है। बट टोटोटॉइस के केस में क्या है, मोर देन 100 ईयर्स, बहुत ज्यादा लाइफ स्पैन है। नॉन लिविंग थिंग्स का तो क्या है, फिक्स ही नहीं है, डू नॉट हैव एनी टाइप ऑफ ए लाइफ स्पैन, दे आर अलाइव। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द लिविंग थिंग्स लाइफ स्पैन। ओके, I hope you understand about your definite lifespan. Now we understand the case of a study. The case of a seed, sorry. आपके पास वीट सीड जो होते हैं, वीट सीड की बात करते हैं, जो आपके गेहूं रखे होते हैं, आपने देखा वो स्टोर करके बहुत टाइम तक रखे होते हैं, वो इसके अंदर स्टोर करके आपके रखे होते हैं बहुत टाइम तक। तो जो ये है वीट ग्रेन्स जो होते हैं, ये कोई भी करेक्टरिस्टिक शो नहीं करते किसका, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। इनके अंदर कोई है ना, ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ना ये बहुत टाइम तक ना एक्सक्रीट करते हैं, कोई भी करेक्टरिस्टिक्स नहीं है इन वीट सीड्स के अंदर। किसका करेक्टरिस्टिक्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नहीं, सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक शो करते हैं। ये एक केस स्टडी हमने क्यों किया है सीड का, क्योंकि सिर्फ इसमें एक करेक्टरिस्टिक शो होता है, वो क्या होता है, रेस्पिरेशन। क्या होता है, रेस्पिरेशन। इसके अंदर एक केस बस शो होता है, वो रेस्पिरेशन है, बाकी कोई भी करेक्टरिस्टिक्स इसका शो नहीं करता, ना ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ना एक्सक्रीशन, ना कोई भी, ठीक है। और ये क्या है, डू नॉट ग्रो, कोई भी इनको फूड नहीं चाहिए, डू नॉट ग्रो,
रिमेन एज द शॉप, बहुत टाइम तक, मंथ तक पूरे शॉप में रखे रहते हैं। तो ये जब एक जूट के अंदर, जूट बैग्स के अंदर आपके, ये गनी बैग्स बोलते हैं जिन्हें, उनके अंदर रहते हैं, तो वहां पे बहुत टाइम तक ये रहते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो वीट सीड्स होते हैं वो क्या करते हैं, हीट रिलीज करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रेस्पिरेशन क्या होता है, कोई हीट रिलीज करते हैं, तो वहां पे क्या है, एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज होती है, आपको पता है, रेस्पिरेशन के थ्रू। तो वहां पे क्या है, रेस्पिरेशन टेक प्लेस करता है, लाइफ प्रोसेस। जैसे आपके ड्राई और ये ड्राई और ऐसी बहुत ही ऐसी प्लेस में रखे रहते हैं, तो बहुत, जैसे आप हाथ डाल के देखोगे जो गेहूं की जो वो होगी जूट बैग के अंदर, तो वो बहुत ही गर्म होगा, तो वहां से अपने आप से हीट रिलीज होती है। तो इसकी वजह से क्या है, यहाँ पे रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, अदरवाइज कोई भी प्रोसेस नहीं होता। तो आप ऑब्जर्व करेंगे, आपका हाथ क्या बहुत ही गर्म हीट सी आपको महसूस होगी जब आप जूट बैग के अंदर डालेंगे गेहूं जिसके अंदर होंगे, तो एक हीट रिलीज होती है, तो ये रेस्पायर करते हैं, वी ऑब्जर्व्ड इफ वी डू दिस। ओके, आई होप you understand the case of study. So here we end up our session. I hope everyone you like my session, and today's session we discuss about the characteristics of living organism, food, growth, definite lifespan, respiration, excretion, reproduction and movement. I hope you understand, and I hope you understand all the concept of your living organisms. I hope you like my session. Please share and subscribe my channel Study Warrior. Thank you so much.